ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೈದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತ ತಂಡದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತವೃಂದ.
ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.iskonmangaluru.com. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So we are all Gajendra only. ये इसका फाइनल प्रॉपर ने यही बताया. सब को लोग गजेंद्र की तरह, सब लोग सोच रहे हैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड घड़ियाल वेट कर रहा है मृत्यु के रूप में पकड़ने के लिए. जब घड़ियाल पकड़ेगा तो डॉक्टर भी बोलेगा आप गए, हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन उस समय अगर आप भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक बोला है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़. अगर आप दुष्ट हैं तो आप भगवान की शरण नहीं जा पाएंगे. ये शाम तो अंतगतम पापम. लेकिन जब आपका दिल शुद्ध है तब आप भगवान के चरण पकड़ेंगे. ठीक है, तो घड़ियाल तो सबको पकड़ने वाला है. कभी कभी इसका सिचुएशन में हम सोचते हैं कि हम बड़ा कंफर्टेबल हैं. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बड़ा बड़ा कार है, घर है, आदमी सोचता है मैं कंफर्टेबल हो गया, सुरक्षित हो गया. कोई सुरक्षित नहीं है. इसलिए वो फेमस लोग बार बार याद करते हैं, क्या है, समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम नतेशम. इस दुनिया में हर पद में भय है. तो गजेंद्र का एग्जाम्पल क्यों भागवत याद कर रहा है? बिकॉज गजेंद्र, हर आदमी आता है संकट में, मृत्यु तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन गजेंद्र को याद करके उसमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए. और गजेंद्र को देख के अभी कोई मेरे को नहीं बचा सकता. हाँ, सो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेन गलती ये है हमारी, हम ये सोचते हैं हमें कृष्ण के अलावा कोई व्यक्ति है जो सुरक्षा दे सकता है. ये हमारी गलती है. कोई ऐसी चीज़ है कृष्ण के अलावा जो हमें सुरक्षा दे सकती है, इसलिए हम कृष्ण को प्रार्थना नहीं करते. दो चीज़ है, आई थिंक प्रार्थना क्यों नहीं करते. एक तो हम ये सोचते हैं कि हम मुश्किल में नहीं हैं, हम आराम से बैठे हैं, हम तो बड़े आराम में हैं, और सीरिया में लोग हैं वो बड़ा मुश्किल में है. ऐसा हम गलत सोचते हैं. केरला में लोग हैं वो तो बड़ी मुसीबत में है, हम बैंगलोर में यहाँ तो बाढ़ नहीं आई, यहाँ तो बचे हुए हैं. नहीं, आप भी उतनी मुश्किल में हो जितना हुआ है, खाली बाहर से दिख रहा है. नहीं, कुछ लोग बाथरूम में ही साबुन में फिसल के मर जाते हैं. कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है. ये कोई भौतिक लोग ऐसा है, कोई सुरक्षित नहीं है. हम लोग सोचते हैं सुरक्षित है सब. ये बहुत बड़ा दर्शन है मेरे ख्याल से, जब पता चलता है आदमी को मैं डेंजर में हूँ, आई एम इन डेंजर, करें, दिस इज अ बिग दर्शन. बिकॉज लिटिल कंफर्ट, आई एम कंफर्टेबल. ये वर्ल्ड, कृष्ण जी भगवद गीता में बोले हैं, क्या बोले, दुखालय अशाश्वतम. ये तो दुख की जगह है और बहुत टेम्पररी है. सब आचार्य लोग ये देख के गए. लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते. ये बहुत मुश्किल से मिला है. दुर्लभ मतलब मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिला है. एकदम बहुत जन्मों के बाद ये स्थिति मिली है. तूर्णम, फटाफट फटाफट, तूर्णम यतेत. क्योंकि हमारा क्या है, मेन काम तो ये है, तूर्णम यतेत. क्विकली अंडरवेयर करो, यत्न करो, इस पे क्या करो, अनुमृत्यु, मृत्यु आने वाली है, फटाफट प्रयत्न करो. मृत्यु के पकड़ने से पहले फटाफट प्रयत्न पढ़ो. लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते तूर्णम यतेत अनुमृत्यु यावत. व्हाट इज द थर्ड लाइन? लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते तूर्णम यतेत अनुमृत्यु यावत. फोर्थ लाइन आना, विषया खलु सर्वतः स्यात्. इंद्रिय भोग तो सब जानवर के जीवन में भी उपलब्ध है. मनुष्य जीवन में ये बुद्धि आदमी होना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है. फटाफट, बहुत रेयर, ऐसा जन्म बहुत रेयर. लब्धवा सुदुर्लभम, बहुत बहुत रेयर है. सो दिस इज, इस जन्म में हमारा मेन काम हमको नहीं भूलना चाहिए. मेरे को याद है जब मैं मंदिर ज्वाइन किया था तो मेरे साथ एक और डिवोटी था, तो हम उसको कुछ डिफ़िकल्टी हुआ. अब डिफ़िकल्टी, मंदिर मतलब भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो डिफ़िकल्टी होता है. एक आदमी से दूसरे का सहयोग नहीं होता. दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ.
So he went to the president and he got a very nice answer. He told me, shared with me answer. So he said, I am feeling very disturbed. He said, आप भूल गए कि हम आए किस लिए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं? हम किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण का दर्शन मिल जाए, और हमें कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा है बिकॉज हम इसके लायक नहीं है. करेक्ट? दिल में हमारा मेन आकांक्षा है किसी तरह कृष्ण जी दिख जाए, और क्यों नहीं दिख रहे? बिकॉज हम इसके लायक नहीं है. वी आर नॉट क्वालिफाइड. प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. ये तो बोल दिया स्ट्रेट. और उन्होंने भी बहुत बारी सीधा बोल दिया था कि कृष्ण उनको हर क्षण दिखते हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के. ठीक है? सो आवर सिचुएशन इज therefore दैट वी हैव टू कीप इन द फ्रंट. हमारा मेन लक्ष्य यही है. जैसे हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना, विदुर को. विदुर हैड्स, he never forgot his main mission in life. Oh, so peaceful, he was so happy. दुर्योधन ये बोला, वो बोला, कितना अपमान किया दुर्योधन उसका. वो मन में छोड़ो, ये सब चीज़ें मन में नहीं रखा. वो ही वॉज एंजॉइंग. मैत्रेय मुनि कृष्ण कथा बोल रहे थे, वो मजे से सुन रहे थे. Isn't it? Imagine how evolved that consciousness will be. And I was just seeing, even Pandavas are so evolved. युद्ध में आप देखिए अपोजिट युद्ध हो रहा था, एंड देयर वर टू पीपल, द्रोणाचार्यस one co-brother who did not die, Kripacharya. And after the Yuddha, he was guiding Pandavas. Almost life and death. Isn't it? He was also involved in killing of Abhimanyu. That heart is so big. So big heart. So big heart. Can't even imagine. हम तो लोग सोच भी नहीं सकते. But why it is like that? Because मूल चीज उनके जीवन में था कृष्ण का शरण लेना. मूल चीज. प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि भक्तों के बीच में कृष्ण जी सेंटर में है. इवन इफ देयर इज अ डिफरेंस समटाइम वो सॉर्ट हो जाता है बिकॉज कृष्ण सेंटर है. अगर कृष्ण सेंटर नहीं है देन इट्स इन ऑर्डिनरी सोसाइटी में क्या होता है, इट्स लाइक टू कंट्रीज आर फाइटिंग. इंडिया पाकिस्तान इज द, एक्चुअली वी डू नॉट नो, द बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड इज इंडिया पाकिस्तान फाइटिंग. बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड. दीज टू कंट्रीज आर द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्रीज फाइटिंग इन द वर्ल्ड टू आर इंडिया पाकिस्तान. मीन्स एक दूसरे गर्दन पकड़ने के लिए रेडी है. Isn't it? Interesting. We are ourselves part of that. And so many wars are happening in the world. And they will never get resolved. तो आपका जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सॉल्व नहीं हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनका जर्मनी, वी आर स्पेशल. It could never be solved. So, they will never solve. America, Russia, the problem has been there for how many? 50 years, 100 years. So, solve ही नहीं हो रहा. कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, ये काम, ये वो काम, सैंक्शंस, ये सब चलता रहता. बट भक्तों के बीच में बिकॉज कृष्ण सेंटर में है, कृष्ण की सेवा के लिए भक्त लोग सहमत हो जाते हैं. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इवन गजेंद्र एंड यू सी दैट घड़ियाल, देन यू थिंक गजेंद्र हैज एनीथिंग इन हिज हार्ट फॉर घड़ियाल. अरे ऐसे में मजा कर रहा था, इतनी मेरे साथ बीवियां थी, राजा था पूरा, और तू तो खत्म कर दिया सब कुछ. No. He is getting a body, spiritual body, and प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, घड़ियाल को बहुत आशीर्वाद मिला क्योंकि वो महान भक्त के पैर पकड़ा हुआ था. कह रहे गजेंद्र एक्चुअली महान भक्त था, पिछले जन्म का महान भक्त था. घड़ियाल तो देवता था शायद, जिसने कुछ गड़बड़ किया. हाँ, देवता था, लेकिन महान भक्त और देवता में फ़र्क होता है. देवता भी महान भक्त होते हैं जनरली, लेकिन शुद्ध भक्त तो इतना स्पेशल है कि देवता भी उसको पूजा करते हैं. क्यों? उसका डिज़ायर टू सर्व कृष्णा इतना इंटेंस है कि कृष्णा का दिल हिल जाता है उनके डिज़ायर से. सो इवन देवतास वर्शिप देम. दे कैन बाय देयर प्रेयर्स दे कैन मेल्ट द हार्ट ऑफ कृष्णा. व्हाट इज द प्रूफ? प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हदेव यहाँ आए थे तो क्या हुआ था? सारे देवता लोगों ने प्रार्थना करी थी टू कूल डाउन नरसिम्हदेव. नरसिम्हदेव आवाज़ कर रहे थे हुर्र हुर्र, और शेर की तरह जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे. हाथी डर के कांप रहे थे, देवता लोग भी कांप रहे थे. वो प्रार्थना किए, इंद्र जी बोले थैंक यू वेरी मच, सारी अप्सरा वापस मिल गई. नरसिम्हदेव आपने इसको मार दिया है. सब अप्सरा उठा के ले गया था, अप्सरा मिल गई, खुश. नरसिम्हदेव को खुश नहीं हुआ.
कुछ नाग बोले अरे मणि वापस मिल गई हमारी। लेकिन एक्चुअली ब्रह्मा और शिव जी वहाँ खड़े थे, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उन्होंने इस समय, क्योंकि उनको भगवान की लीला समझ आती है, उन्होंने भगवान को बोला, आपका प्रहलाद को बोला तुम जाओ आगे। एंड देन प्रहलाद महाराज केम एंड ऑफर्ड प्रेयर्स, बट लुक एट इट, जो देवता लोग शांत नहीं कर पाए, सब लोग प्रहलाद की महिमा करना चाहते थे, प्रहलाद ने खुश किया, कह रहे। सो शुद्ध भक्त में और देवताएं बहुत बड़ा फर्क होता है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। शुद्ध भक्त इज एक्चुअली, एंड हाउ डू यू नो समबडी शुद्ध भक्त? वो कृष्ण दे सकता है किसी को, उसके दिल में कृष्ण है, देवता भी नहीं दे सकते। दैट इज स्पेशल पोटेंसी ऑफ शुद्ध भक्त। बिकॉज इस दुनिया में हमको किस ले जाए, इसने बोलते हैं ना, आप बहुत सारे सॉन्ग हैं, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारो। देवता भी के पास भी ये शक्ति नहीं है कृष्ण को देने की, इसलिए अगर आपको कृष्ण धाम जाना है तो देवता के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो नहीं दे सकते आपको। आपको जाना पड़ेगा शुद्ध भक्त के पास। शुद्ध भक्त, ट्रू, जो टॉप देवता हैं वो भी शुद्ध भक्त ही होते हैं सारे, लेकिन उनका रोल अलग है अभी। जैसे लाइक गोपीज लोग हैं, वो उनके पास जाती थी ना सब, देव कृष्णा दे दो, कृष्णा दे दो, है ना, वी वॉन्ट कृष्णा, वी वॉन्ट कृष्णा, ठीक है। तो शुद्ध भक्त का पोजिशन इज वेरी वेरी स्पेशल। सो घड़ियाल था देवता और गजेंद्र है शुद्ध भक्त। तो देवता शुद्ध भक्त के पैर पकड़ा था, एंड ही ऑल्सो गॉट ब्लेस्ड। ही गॉट ब्लेस्ड, शुद्ध भक्त के पैर पकड़ने से ही ऑल्सो गॉट ब्लेस्ड एक्चुअली, ठीक है। सो वी शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड दिस पोजिशन कि मृत्यु से गजेंद्र इज गिविंग एन एनालिसिस, प्योर डिवोटी। एक्चुअली पिछले जन्म में ही वॉज अ प्योर डिवोटी, एंड ही वॉज कृष्ण के लीला में ही वॉज इन स्मरण। एंड देन व्हाट हैपेंड, कोई उनके अनकॉन्शियस ऑफेंस हो गया। कि भक्त लोग कोशिश करते हैं ऑफेंस ना हो, अनकॉन्शियस ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए, कॉन्शियस तो अलग है, क्या नहीं होना चाहिए, अनकॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। अनकॉन्शियस मतलब अज्ञात अपराध, अनजाने में। वो तो बैठा है, वो ध्यान से समाधि में लगा हुआ है, और कोई ऋषि मुनि उसके आए, और जैसे सेम परीक्षित जैसा एग्जाम्पल, कुछ उससे मांगा तो ये ध्यान में बैठा था, तो उसको श्राप दे दिया, तू हाथी जैसा बैठा रहे बस, और हाथी बना दिया उसको श्राप से। उसका दिल में कोई गुस्सा नहीं। जैसे इसको श्राप मिला था चित्रकेतु को, चित्रकेतु ने, दुर्गा ने उसको श्राप दिया, उसने आगे नमस्कार किया, वो शुद्ध भक्त था, स्वीकार है, स्वीकार है। तो भक्त को कोई पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य, हमारे लिए ये रोल मॉडल है। हमारा रोल मॉडल है गजेंद्र, हमारा रोल मॉडल है चित्रकेतु, ठीक है। तो जब भी माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, जब भी कुछ सेवा कुछ तरह से रुक जाता है, कुछ हम सेवा करना चाह रहे हैं, कुछ रुक गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट फिजिकली भगवान के सामने बैठना चाहिए, या हो सकता है मन में ऐसा क्यों होता, बिकॉज ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमारी शरण तो भगवान है, कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे गजेंद्र, इतना मुश्किल स्थिति आ गया फिर भी वो शांत रहा। अगर भक्त अशांत हो गया तो फिर भक्त कैसे रहा, सब कुछ छूट जाएगा। कृष्ण का स्मरण हमेशा, मुश्किल में जो सुकृति होता है, दुष्ट भगवान को याद नहीं करेगा, खाली उसका घमंड विचलित करता रहेगा। लेकिन भक्त जब भी चीज़ विचलित होती है भगवान को सोचने लगता है, ए भगवान ये क्या हो रहा है, मैं तो आपकी सेवा करना चाह रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो जैसे आपका गजेंद्र है, इतना मुश्किल स्थिति आ गया, उसके मन में ये नहीं, ये घड़ियाल मेरा सब डिस्टर्ब कर दिया, ये नहीं, उसके मन में आ गया कि बेसिकली अब मेरे को भगवान के ही शरण लेना है। तो ये करने के लिए चतुर्विधा भजन्ते माम जना नाम सुकृतो आजना। अगर दिल शुद्ध होगा, दिल में अहंकार नहीं होगा, तो आदमी सीधा भगवान के चरण पकड़ता है। भगवान, क्योंकि डिवोटी फाइनली, बहुत बड़ा भक्त का लक्षण है, वो हम्बल होता है, वो अपने को कुछ नहीं समझता है। ठीक है भगवान, आपकी ऐसी इच्छा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना नाम सुकृतो अर्जुना, मैं भगवान आपकी शरण लेता हूँ, आप बताइए अब क्या करने का है। हमेशा तो दिल में भगवान हमेशा एक दिव्य ज्ञान देते हैं, बहुत दिव्य ज्ञान हो, और उसको देख के लोग अचंभित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। जैसे एक बारी प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे वर्णाश्रम, वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय। तो एक आदमी बोला, अच्छा क्लास के बाद
ये बताना चाह रहे हो ना हमको कि तुम ब्राह्मण हो, हम शूद्र हैं। अमेरिका में कहीं पे हुआ, बिकॉज दे कांट टेक दिस। सो प्रॉपर से नो, आई एम नॉट ब्राह्मण, आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीबडी। वो शॉक हो गया। करेक्ट? सो द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज दैट ही इज कृष्णा सेवक, और उसका लक्ष्य यही है किस तरह कृष्ण का सेवा पूर्ण हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं चाहता वो। देखो द स्वभाव ऑफ द डिवोटी इज वेरी वेरी स्पेशल। भक्त के लक्षण गुण हैं, दे आर द आभूषणास ऑफ द डिवोटी, एंड कृष्णा बिकम प्लीज्ड विद दैट। कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण को एक्चुअली हमारे सेवा, जैसे कोई लोग भी आते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हमको कितना ज्ञान है। मैं जब पहली बारी भक्तों को देखा था इकट्ठा, एक बारी देखा था जब पृथु प्रभु आए थे, सबसे पहली चीज़ मेरे को ये दिखी थी, वाह कैसे एक दूसरे को ये लोग आदर करते हैं, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, इतने प्रेम से प्रसाद खिला रहे हैं। और वो चीज़ से मेरे को आकर्षण आया था, इनका फिलॉसफी क्या है, इजंट इट? फर्स्ट वी सी द बिहेवियर, इनका आचरण कैसा है, इतने प्यार से लोग रहते हैं इकट्ठा। ये दुनिया में जब भी हम देखते हैं, जस्ट लाइक वी सॉ, आई रेड बंच, मैं चैतन्य चरित्र पहली बारी पढ़ रहा था, तो उस समय मैं जो पहली बारी रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर को मिलने गए, तो क्योंकि मैं तो भौतिकी मन था मेरा, अभी भी भौतिकी है, तो मेरे को लगा अरे जरूर इन दोनों के बीच में ईर्ष्या होगी, बिकॉज दो प्रखंड लोग हैं, हरिदास ठाकुर इतना, एंड मैन चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, वी आर शॉक्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं भाव। चैतन्य महाप्रभु मिलने आते हैं हरिदास ठाकुर को, उसके बाद वो रूप गोस्वामी के कुछ, रूप गोस्वामी वहाँ पे कुछ किताब लिख रहे थे, 2 किताब उन्होंने लिख रही थी, और जब वो लिख रहे थे किताब, चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हुए, नेक्स्ट दिन पूरे टीम को लेके आए कि सुनो तो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा। एंड स्वरूप दामोदर आए, बहुत बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े विद्वान भक्त आए, और रूप गोस्वामी के काम देख के सब लोग अचंभित हो गए। और जब चैतन्य महाप्रभु गए, हरिदास ठाकुर उससे गुस्सा नहीं हुआ, अरे इसको इतना मान दे दिया, इतना उसको प्रार्थना करी कि आप इतने भाग्यशाली हो, आपको इतना भगवान का कृपा मिला है। ये देखना चाहिए, हर भक्त जो भी सेवा कर रहा है, थोड़ा भी विश्वास अगर उसको है, ये प्रभुपाद जी का कृपा है, ये पूरा मूवमेंट ही प्रभुपाद का कृपा है, ये समझना चाहिए। ये भक्त के हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उन्होंने ही पूरा मूवमेंट में भक्तों को दिव्य ज्ञान दिया है, और उनके शिष्यों ने फिर हमको दिव्य ज्ञान दिया है। तो ये जो पूरा परंपरा से आ रहा है, फाइनली प्रभुपाद जी से आ रहा है। ठीक है, ये दर्शन जो है ये आचार्य के खुश होने से आता है। तो किसी तरह इस भक्त के पास कुछ लक्षण है, ये शांति से ये अच्छा करता है, ये अच्छा करता है, ये अच्छा करता है, हमेशा प्रभुपाद की कृपा देखिए, इसको प्रभुपाद की कृपा मिला, इसको प्रभुपाद का कृपा मिला, इसको प्रभुपाद का कृपा मिला, और हमेशा इसलिए दास दासानुदासा का भाव भक्त के दिल में बनता है। ठीक है, सो मेन चीज़ हमारा जीवन भी भयभीत है, हमारे जीवन में भी कभी भी सब कुछ जा सकता है। ठीक है, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में मर जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं, किस लोग जाएंगे मालूम नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से भगवान की सेवा सबको करना चाहिए, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम भी कभी इस स्थिति में फंसने वाले हैं, गजेंद्र की स्थिति में। ठीक है, एंड अगर भक्ति करते रहेंगे, अगर भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे दिल में विश्वास बनता रहेगा, और उस समय गजेंद्र की तरह हम इंटेंसली भगवान को प्रे कर पाएंगे। ये तो आसान नहीं है, गजेंद्र जैसा भाग्य कि भगवान खुद वैकुंठ से आ गए, ये तो आसान नहीं है। एटलीस्ट भगवान का स्मरण रहेगा तो भगवान का सुरक्षा रहेगा। फिर श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।